you children have chosen Sanskrit. Would you like to share what has happened in the school in these years that has made you choose Sanskrit as a subject in the 10th boards? What is it that you are expecting after taking Sanskrit in the 10th board? We have already discussed that Sanskrit itself means pure. So something as pure as that doesn't need much time to impact you. So as soon as I joined the school, there were several shlokas, several stutis that we learned. And this beautiful curriculum that was designed, Dev Bhasha, the first thing it has is the prarthana. So every prarthana that we learned, we tried to just not mug it up. We tried to like grasp the meaning and then put it in our lives. So gradually as our classes grew, we developed an innate bond with it. Like without studying Sanskrit in the day, it felt like something is remaining, something is incomplete. So when the choice came to us that you can either study Sanskrit or leave Sanskrit, so it was never in my mind that I could leave Sanskrit, what I have been studying with so much of passion in these past years. Sanskrit adds a special arrow in our quiver of knowledge. Like not only does it impact our soul, it also streamlines our thoughts. And whenever we recite a shloka, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तरंग, तरंगित हो जाती है वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिज्म हमारी बॉडी में, जिस वजह से हमारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है. संस्कृत वो भाषा है, आप कम शब्दों में बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं. मैम आपने पूछा था कि व्हाट इज आवर गोल आफ्टर दिस. Once we learn this language, we can write on our own. We can write the inference of all the texts like Gita, Ramayana on our own, and then that will be completely different, and that version will be the best for us. Best for us. I started studying Sanskrit in class 7th. Yeah. So it was quite difficult for me studying Sanskrit as a new language, because the school from where I came, there was not Sanskrit as a language. We were just taught Sanskrit in Hindi period for a while. So when I came in this school, there was another language, Sanskrit, that we have to learn. It was my habit that I was very ashant. I was in a hurry to do every work. So my mother used to say that, please be patient. Ma'am, Sanskrit played a key role in my calmness. My work was not perfect. There was some or the other lackness in my work. Ma'am, that perfection came when I started studying Sanskrit, and when my heart, my soul calmed down. My God, Mani, what kind of observation power you have? My cousin sister also chose Sanskrit, and ma'am, she was also inspired by me, because like we live up and down. So ma'am, I used to recite my shlokas, I used to recite prayers in the morning, so she used to come down and recite with me. Wow. मैम जैसे कि आपने पूछा था फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे संस्कृत लेके. संस्कृत हमारी संस्कृति है, तो मैम उस संस्कृति में वापस लाना चाहूँगा, क्योंकि मैम अंग्रेजों के आने की वजह से मैम हमारी संस्कृति हमारे देश से गायब हो गई है. एकदम गई, उसको वापस मैम संस्कृत हमारी संस्कृति है, तो मैम अगर जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हम जब अपने आसपास वालों को संस्कृत पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, मैम संस्कृति वापस आ ही सकती है. I've opted for Sanskrit in place of Hindi. What connected to this language was Srimad Bhagavad Gita. Because I joined the school in class 6th, and Bhagavad Gita classes also started in the same year. So time, I just, it was just happening spontaneously. मेरे कोर को जिसने हिट किया, that was this language. वो कोर आपकी आत्मा है. मुझे लगता है पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ये करना है फ्यूचर में. We have to study to understand this world, to understand our own selves. And Sanskrit is something, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ करने के लिए संस्कृत पढ़ना है कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है. और फॉर IAS एग्जामिनेशंस वी हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शन्स इन संस्कृत फॉर IAS एग्जामिनेशंस. मुझे लगता है संस्कृत इसलिए नहीं लो क्योंकि तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारा जीवन है और उसके लिए तुम्हें ये आवश्यक है. इफ आई एम डूइंग समथिंग इन हिंदी और इन संस्कृत, दे आस्क मी कैसे कर लेती हो. मैंने कहा मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम इंग्लिश में कैसे कर लेते हो, क्योंकि ये तो है जो तुम्हारा है. और दैट इज समथिंग विच इज फ्रॉम विच इज समथिंग जो बाहर से आया है, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है. और ये तो है जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा जो तुम्हारा है, जो तुम हो, जो तुम्हारा है. People ask from which class you're studying Sanskrit. Now please say ask it's from playgroup, and they're just like surprised. What, from playgroup Sanskrit? Yeah. How are they able to understand? संस्कृत एक अलग ही है जो पूरे जीवन को चेंज कर रही है, जो मुझे ही बदल के रख दी. जो संस्कृत है उसको पढ़ने के बाद जो दूसरे सब्जेक्ट है उनमें भी और वेल कर पा रहे हैं, और इसको तो अपनी जीवन ही बना रहे हैं एक तरह से. संस्कृत के प्रति मेरा रुझान हुआ क्योंकि जो हमारे ऋषि थे उनकी ये भाषा थी. जब से मैं गीता कक्षा से ही जुड़ा हूँ तब से
मतलब मुझे ऋषियों से एक विशेष ही लगाव रहा है जो हमारे हुए हैं। उनके जीवन के पास गया तो उनकी भाषा यही होती थी। जब भी वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे जो कि उपनिषदों में संकलित हैं, तो वो सभी संस्कृत में होते थे। मैंने ये सोचा कि जब भी मैं उपनिषद किसी को पढ़ने जाता हूँ या फिर मैं नेट पे लिखता भी हूँ, तो मैं उसके साथ मुझे लिखना पड़ता है विद हिंदी मीनिंग। तो मुझे एक अपने अंदर ये एक दिखा कि जब हमारे स्कूल में इतनी प्रारंभिक अवस्था से संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो फिर ऐसा क्या ज़रूरत कि हमें दूसरी भी व्याख्याओं का वो लेना पड़े। हम खुद से क्यों नहीं उन शब्दों को समझें। तो मेरा तो कोई पूछे कि कारण क्या था संस्कृत का, तो यही एकमात्र था। अगर इस भाषा में मैं और अच्छे से इसका व्याकरण भी समझूं और इस भाषा को समझूं कि जिससे जो सूत्र मैं पढ़ता हूँ कि को हम सो हम अहम ब्रह्मास्मि जीवो ब्रह्मैव नापरा मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, तो ये सब जो उपनिषदों के इतने अच्छे अच्छे सूत्र हैं, इनको मैं सीधे इनका अर्थ समझ पाऊँ। और संस्कृत भाषा ही देखें तो इसी से ही संबंधित होता है, संस्कृति शब्द होता है। बिल्कुल। तो ये संस्कृति जो कल्चर है वो आती है अध्यात्म से। अध्यात्म से ही संस्कृति निकलती है, वेदों से ही संस्कृति आई है और वेदों की भाषा ही जो संस्कृत है। इसलिए अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो संस्कृति एक सहायक होती है। ब्यूटीफुल। I was really confused. I should take Sanskrit or Hindi. I was interested in both of them, and so my father also said that you should take what you like. At the end, I decided I will take Sanskrit. I was learning Sanskrit like I wanted to. I was learning everything. Last class, we studied like 20 minutes extra after home time. So we didn't even realize that the school is over and we have to go home, and we studied. So it's really good in studying Sanskrit, ma'am. It's making us learn what we are really are, ma'am, like you just said. Yes. संस्कृत का जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरे बाबा की वजह से आया है। संस्कृत के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा वेल वर्स्ड थे। जब मैं स्कूल के अंदर आया तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये संस्कृत की ग्रामर की किताब है ये लो, और तब मुझे पता चला कि संस्कृत क्या है। शब्दों की ओरिजिन के बारे में उसके अंदर लिखा होता है। जल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड बन सकता है, उसका एक धर्म है कि वो जड़ हो सकता है, तो उसी जड़ शब्द से जल बना है। मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है। मैंने फिर और रिसर्च की इसके अंदर, फिर पता चला वैदिक मैथ्स, वैदिक ज्योमेट्री, श्रीयंत्रम और सूर्य सिद्धांत, वैशेषिक सूत्र, जो ये सब इनके बारे में पता चला। पंचभूतलिंगों के बारे में पता चला, उनके पीछे की साइंस पता चली। तब मुझे संस्कृत का साइंटिफिक मतलब पता चला। बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी हिस्ट्री के बारे में और पता चला, तो मैंने कहा कि मैं संस्कृत ले रहा। तो मेरा तो संस्कृत में प्रेम बस गीता से आया है। अभी लोग और महोदय जी भी जानते हैं कि मेरी उच्चारण कैसी थी, और अभी भी जो हिंदी भी बोल रहा हूँ वो भी मतलब अच्छे से नहीं बोल पाता था, उसमें बहुत ज़्यादा तुतलाता था, स्पष्ट नहीं हो पाती थी, ये सभी लोग जानते थे। और फिर महोदय जी हमें श्लोक पढ़ाते रहीं, फिर उस संस्कृत से ही मेरी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई थी। मैम, मैंने संस्कृत इस वजह से लिया है क्योंकि अगर मैं या फिर कोई भी जाता है बाहर मतलब विदेश में, तो वहाँ पे अगर हम लोग अपने फ़ोन पे या फिर अपने दोस्तों से, अपने परिवार से संस्कृत में बात करते हैं, तो वहाँ के भी लोग तो चौंक के देखेंगे, पर वो लोग क्या सोचेंगे, मुझे यही लगता है कि वो ये सोचेंगे कि हम भारतीय हैं। क्योंकि हम अगर मराठी बोलेंगे तो वो हमें समझेंगे अरे ये तो महाराष्ट्र से है, गुजराती बोलेंगे तो गुजरात से है। पर अगर हम लोग अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम संस्कृत में बोलेंगे, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, वो हमारे देश की भाषा है। We are not studying Sanskrit for any external physical gains in the material world. We are studying Sanskrit जिससे हमारे अंदर संस्कृति आए। जो सपना उस समय 2000 में देखा था, वो आज मुझे लगता है जैसे एक्चुअली इट इज़ सो कमिंग ट्रू। यू हैव मेड दैट ड्रीम कम ट्रू।